Hello guys, very good afternoon. Today I am going to explain the next topic of human reproduction, that is female reproductive system. In the earlier video I have already explained about the male reproductive system. This is presented by me, Archana Shukla. So let's begin. First of all, the female reproductive system includes three main parts of female reproductive system. The first one is paired ovary, second one is accessory duct and external genitalia. Okay, and the accessory duct also divided into three parts. The first is fallopian tube, the second is uterus and vagina. Fallopian tube also called as oviduct. Okay, and external genitalia also divided into four parts: mons pubis, vestibules, hymen and clitoris. So this is the external structure of female reproductive system. You can easily understand that this is structure of reproductive system of a female. Okay guys, which includes pair of ovaries which connected to the uterus by the ligament. This is body of uterus. This is called fundus of uterus, the upper bulgy portion. Okay guys, like this. And this is the vagina. This is the external structure of female reproductive system. I will explain it briefly in the next slide. So ovaries are the primary sex organ. What is this? They are primary sex organ which produce ova, okay? Female gametes, which is also called as female gamete, which I have already explained in the male reproductive system, that what is gametes and types of gametes. Okay, and they also secrete steroid ovarian hormones, which is also known as estrogen and progesterone. Okay guys, and each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. They are located in both side of the lower abdomen. ठीक है, ये लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में होते हैं, जैसे कि आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं. ठीक है, और ये लिगामेंट के थ्रू यूट्रस के पेल्विक वॉल्व से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. This is a structure of single ovary. So each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Okay, the inner part of ovary is called ovarian stroma. Okay, and it is covered by epithelium. ठीक है, किससे कवर्ड होता है? एपिथीलियम से. ठीक है, स्ट्रोमा हैज अ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. सो it has two covering. First is outer and second is inner. Outer covering is made up of cortex and the inner lining is made up of medulla. Okay, ovary contains group of cell. ठीक है, ovary के पास जो होता है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल होते हैं. ठीक है, जो यही सेल क्या करते हैं, बाद में डिवीजन करके ओवा बनाते हैं. लेकिन ये सारे ग्रुप ऑफ सेल में सारे तो ओवरी नहीं, सारे तो ओवा नहीं प्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ एक ही सेल होगी जो ओवा प्रोड्यूस करेगी. सो दे कंटेन ग्रुप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है, इनको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं. ग्राफियन फॉलिकल्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स फाउंड इनसाइड द ओवरीज. ओके, ईच फॉलिकल कैरीज सेंट्रली प्लेस्ड ओवम. ठीक है, अब क्या होगा, सभी जो फॉलिकल होती हैं उनके पास क्या होता है, उनके सेंटर में ओवम प्लेस्ड होता है. नेक्स्ट इज एक्सेसरी डक्ट. सो एक्सेसरी डक्ट हैज थ्री पार्ट्स: ओविडक्ट which is also called as fallopian tube, uterus and vagina. Now we will focus on oviduct. Okay, each oviduct is 10 to 12 centimeter. It has three parts: infundibulum, ampulla and isthmus. Okay, here you can see in the diagram that this is fallopian tube. This is fallopian tube or oviduct which has three part: isthmus,
ampulla and infundibulum. Okay, it is also called as fallopian tube. And the infundibulum have funnel shaped opening with many fingers like fimbriae. ठीक है, fingers like fimbriae होता है इनके पास. And in infundibulum funnel shaped opening with many finger like fimbriae, it helps in collect the ovum. यहाँ पे नीचे देखिए, ये infundibulum की जो ओपनिंग है वहाँ पे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं. ठीक है, ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस बने क्यों हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, ओवम को यहाँ से कलेक्ट करते हैं. ओवम को, क्योंकि ओवरीज से क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है. सो ये ओवम को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके इसको कहाँ पहुँचाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचाते हैं. ठीक है. एम्पुला जो होता है वो वाइडर पार्ट होता है थोड़ा सा. ये देखिए, एम्पुला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसा इस तरीके से होता है. सो ये वाइडर पार्ट जो है इसको एम्पुला बोलते हैं. ठीक है. और इस्थमस जो है वो नैरो पार्ट होता है. इस्थमस जो है नैरो पार्ट होता है. इट ज्वाइन द यूट्रस, ये यूट्रस को ज्वाइन करता है. ये देख सकते हैं, इस्थमस जो है ये यूट्रस को ज्वाइन कर रहा है, ये यहाँ पे. ठीक है. और ये क्या करता है, द सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंड द ल्यूमेन ऑफ द ओविडक्ट डिराइव द ओवम टुवर्ड द यूट्रस. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियल लेयर होती है, इसको कुछ इस तरीके से, जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होते हैं. ठीक है. इसमें कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं, सिलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं, ओवा को पुश करते हैं यूट्रस की तरफ. ठीक है, मतलब उनको ढकेलते हैं यूट्रस की तरफ, मोशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, ओवम के मोशन में हेल्प करते हैं ताकि वो जो है फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. ठीक है. नेक्स्ट इज यूट्रस. यूट्रस को मदर वोम भी बोलते हैं. ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है स्ट्रक्चर में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, विच इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी. इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच द पेल्विक वॉल. और ये किससे सपोर्टेड होता है? लिगामेंट से. जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, एक सॉफ्ट ऑर्गन दूसरे सॉफ्ट ऑर्गन से लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होता है. यूट्रस हैज 3 पार्ट. यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला जो है अपर पार्ट, जिसको बोलते हैं यूट्रस फंडस. दिस इज द अपर पार्ट नोन एज फंडस. एंड दिस इज द मिडिल पार्ट नोन एज बॉडी ऑफ यूट्रस. ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस होता है. ठीक है. एंड द टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं सर्विक्स. ठीक है. सर्विक्स ओपन्स टू द वेजाइना. और जो सर्विक्स है वो कहाँ पे खुलती है? वो खुलती है वेजाइना में. यूटेराइन वॉल के 3 लेयर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन. ओके. एंड मिडिल वन इज मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज इंडोमेट्रियम. ठीक है. ये जो होता है, जो मायोमेट्रियम होता है वो स्मूथ मसल्स का होता है. जो पेरीमेट्रियम होता है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होता है. और जो इंडोमेट्रियम होता है वो ग्लैंडुलर और वेस्कुलर 2 टाइप के सेल्स के बने होते हैं. ठीक है. ये यहाँ पे ये देखिए डायग्राम में मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन है. देखिए सबसे अपर पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ यूट्रस इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम. द इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज इंडोमेट्रियम. ओके. The next is vagina. So vagina opens to the exterior between urethra and anus. So you can understand it in the diagram. This is the urethra and this is rectum which opens into the anus, and this is vagina that is opens between the anus and the urethra.
Okay guys, the lumen of vagina is lined by a glycogen rich mucous membrane consist of sensitive papillae and Bartholin's gland. Okay guys, so जो वेजाइना की जो लाइनिंग होती है वो ग्लाइकोजन रिच म्यूकस होता है, ठीक है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो ग्लाइकोजन रिच होता है और उसमें सेंसिटिव पैपलीज होती हैं और बर्थोलिन्स ग्लैंड होता है, ठीक है। मैंने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स पाया जाता है जो पेनिस के लुब्रिकेशन का काम करता है। सेम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द बर्थोलिन्स ग्लैंड lubricate the penis during the sexual act. Okay guys, so the next is external genitalia. This is the last part of the female reproductive system and it consists of mons pubis, vestibules, hymens and clitoris. Mons pubis is a fatty tissue, ठीक है, ये फैटी टिश्यू टाइप होता है, फैटी कवरिंग होता है जो क्या करता है प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। एंड दिस सेकेंड वन इज वेस्टिब्यूल्स और ये भी डिवाइडेड है लेबिया मजोरा एंड लेबिया माइनोरा में, ठीक है। जो लेबिया मजोरा होता है वो लार्ज फ्लैसी फैटी हेयरी आउटर फोल्ड्स होता है सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, वेयरएज लेबिया माइनोरा स्मॉल थिन हेयरलेस इनर फोल्ड्स, ठीक है। ये स्मॉल और थिन होता है और ये लार्ज एंड फ्लैसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइमेन। हाइमेन अ मेम्ब्रेन विच इज पार्शली कवर्ड द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। जो हाइमेन होता है वो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर्ड करता है, ठीक है। और क्लेटोरिस ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, जो फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वन मोर थिंग in this chapter regarding female reproductive system is mammary glands. This is also includes in female reproductive system because it's also help in the nourishment of the baby. So what is mammary glands? Mammary glands, it is a pair of mammary glands और ये किसका बना होता है mammary glands? mammary glands बना होता है glandular tissues का and fats का, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ब्रेस्ट में उनके पास 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं, ठीक है। सो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैव मैमरी लोब्स एंड दिस मैमरी लोब्स हैव मैमरी एलोवेलाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैमरी लोब्स हैं, ठीक है, और इस मैमरी लोब्स में क्या प्रेजेंट है मैमरी एलोवेलाई छोटे छोटे, ठीक है। और इसको मिला के ये क्या हो गया ये दोनों को ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। द सेल्स ऑफ द एलोवेलाई सिक्रीट्स द मिल्क। जो ये एलोवेलाई होती है मैमरी की, इनका काम क्या होता है ये मिल्क को सिक्रीट करती हैं और ये जो इसकी कैविटीज होती हैं एलोवेलाई की इसमें ये क्या करती हैं मिल्क को स्टोर भी करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सीक्वेंस है मिल्क कंडक्शन का कि मिल्क का कंडक्शन होता है तो वो कैसे उसका क्या सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले जो एलोवेलाई है एलोवेली है जो मेमोरी ग्लैंड्स का वो मेमोरी टेब्यूल्स में ओपन होती है। कहाँ पे ओपन होती है मेमोरी टेब्यूल्स में। ये देखिए in this diagram you can easily see that this is the alveoli mammary alveoli and this is opens into the secondary mammary tubules, then into the duct, then into the ampulla and then into the lactiferous duct और इसके थ्रू ये क्या होता है बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ क्या डिपॉजिट है फैट और ये क्या है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पला। तो क्या होता है ढेर सारी जो
मेमोरी डक्ट्स हैं वो ज्वाइन होकर क्या बना लेती है, मेमोरी एम्पुला बना लेती है, और ये किससे कनेक्टेड है, वो तो होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, और यहाँ से मिल्क बेबी सक कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सीक्वेंस बना हुआ है कि कैसे मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये मेमोरी एलोवेलाई से किधर जा रहा है, मेमोरी टिब्यूल्स में, फिर डक्ट्स में, फिर मेमोरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू ये बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइज। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do not forget to like, subscribe and share.